हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वेदत्तो क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 ज्योग्राफी का, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बोर्ड के पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड यू आर गोइंग टू स्कोर मच ऑन इट। लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। चैप्टर में स्टार्ट होता है, हबन कम्स टू गुवाहाटी विथ हिज फादर फ्रॉम अ रिमोट विलेज. He sees people getting in strange house like objects which move along the road. He also sees a kitchen dragging a number of house along with it. He is amazed and asks his father, why don't our houses move like the one we saw in Guwahati? Ba replies, these are not houses. They are buses and trains. Unlike our houses, they are not made of bricks and stones. Metal like iron and aluminium are used in making these. They do not move on their own. They are driven by an engine which needs energy to work. Means they are introducing us to how the houses are there in Assam. Let's continue with it. We use different things in our daily life made up of from metal. हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में मेटल की बनी होती हैं. Can you list a number of items used in your house made up of metals? Where do these metals come from? You have studied the Earth's crust is made up of different minerals embedded in the rocks. Various metals are extracted from these minerals after proper refinement. ठीक ना? क्या होता है अर्थ को आप जानते होगे. You might be knowing it. Suppose we are going to choose something. Earth. ठीक. Suppose we are going to divide it in core, mantle. So this is outer core, sial, silica, aluminum, silica. Next core, suppose this is silica, sima, silica, magnesium, nife, आयरन, निकल. ठीक है. तो अबंडेंस में जैसे सिल्का है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सिल्का है, आयरन है, निकल है ना. तो मेनी मच लाइक मेटल्स. सपोज कॉपर है, आयरन है, सब कुछ सारे मिनरल्स हमको यहाँ से सारे मेटल्स मिलते हैं. उन मेटल्स से को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे. कौन कौन से मिनरल्स कहाँ मिलते होंगे, कौन कौन से मिनरल्स ज़्यादा हम यूज़ करते हैं. सपोज वायर बनाना है तो कॉपर की वायर, एल्युमिनियम की वायर हम यूज़ करते हैं. एंड वेरियस अदर थिंग्स विच वी आर गोइंग टू मेड अप फ्रॉम दिस थिंग्स. और किससे कौन सा ओर होता है, किससे आयरन एक्सट्रैक्ट हो सकता है, किससे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट होगा, किससे कॉपर एक्सट्रैक्ट होगा. लेट्स कंटिन्यू विद इट. Minerals are indispensable part of our lives. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made up of our minerals. The railway lines and the tarmac paving of the roads, or our implements and machinery too are made from minerals. Cars, buses, trains, aeroplanes are manufactured from minerals and run on power resources derived from the earth. Even the food that we eat contains minerals. In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites. So, the chapter introduces us with lots of things. क्या क्या यूज हो सकता है मिनरल्स का हमारी लाइफ में. Simple things is going to be given in this paragraph. We are going to read it. I'm going to read it out for you. Toothpaste cleans your teeth. Abrasive minerals like silica, limestone, ammonium oxide, and various phosphate minerals do the cleaning. Fluoride, which is used to reduce cavities, comes from mineral fluoride. Most toothpastes are made white with titanium oxide, which comes from minerals called rutile, ilmenite, and anatase. The sparkle in some toothpaste comes from mica. The toothbrush and tube containing the paste are made of plastics from petroleum. Find out where these minerals are found. अब एक सिंपल से टूथपेस्ट में देखिए क्या क्या चीज़ें आ गई है ना. सिल्का आ गया, लाइम स्टोन आ गया, एल्युमिनियम आ गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड आ गया, फॉस्फेट मिनरल्स आ गए है ना. ये सारे सब मिल के टीथ को क्लीन कर रहे हैं. दे आर यूज फॉर क्लीनिंग टीथ. अब फ्लोराइड है विच इज़ यूज टू रिड्यूस कैविटीज़ है ना. कहता है ना कि आपकी टूथपेस्ट में फ्लोराइड है कि नहीं है. और कोई कोई कहता है आपकी टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं. सो द एड्स कम ऑल्सो, बट दीज थिंग्स यूज टू है ना. रुटाइल, इल्मेनाइट, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड ये स्पार्कल वाला वर्ड है ना. सो यू कैन understand what the purpose of various minerals can be in our life.
Dig a little deeper and find out how many minerals are used to make a light bulb. अब लाइट बल्ब में क्या है, वो जो बल्ब आते थे पहले जिसमें टंगस्टन वाले, अभी भी आते होंगे, टंगस्टन वायर लगता था फिलामेंट की तरह, वो जलता था तो उजाला करता था, ये बल्ब हो गया हमारा, ये टंगस्टन, तो ये भी एक मिनरल है. Life process cannot occur without minerals, although our minerals intake represents only about 0.3% of our total intake of nutrients. है ना, हम मिनरल्स कितना लेते हैं, 0.3%. जितना भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें 0.3% ओनली. दैट इज द नीड विच इज गोइंग टू रन दिस मशीनरी ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारे शरीर को रन करने के लिए चाहिए. दे आर सो पोटेंट एंड सो इम्पॉर्टेंट दैट विदाउट देम वी वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज the other 99.7% of foodstuffs. So they are the driver, है ना, driver of the energies, they are driver of the supplies, they are the drivers of the everything. अभी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो पैरालिसिस हो जाता है, एक अंग काम नहीं करे, मीन्स सिग्नल्स आर नॉट गोइंग थ्रू दोज नर्व्स. वो तार कुछ हिल रहा है, गड़बड़ हो रहा है, डेड हो रहा है ना, उसको लाइव करना है. हु विल कीप इट लाइव, है ना. दीज मिनरल्स 0.3% का कितना बड़ा रोल है लाइफ में. सो लेट्स गो ऑन. डिग अ लिटिल डीपर एंड कलेक्ट न्यूट्रिशनल फैक्ट्स प्रिंटेड ऑन द फूड लेबल्स. लो, एक होमवर्क और दे दिया इन्होंने, आप भी देखते होगे. अच्छा, बेसिकली अच्छा वेज नॉन वेज वाला जब इशू आ जाता है, रेड सिंबल ग्रीन सिंबल, है ना, रहता है ना फूड पैकेट्स पे, उसमें न्यूट्रिएंट्स दिया रहेगा, क्या क्या है क्या नहीं है उसमें, सब कुछ हम देख के कितना कैलोरी एनर्जी मिल रही है, कितना फैट है इसमें, सब कुछ देखते हैं. व्हाट इज अ मिनरल? जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल सच एज होमोजीनस naturally occurring substance with a definable internal structure. So you are going to note out this and you are going to learn it. First thing which from this chapter you are going to note out is what is a mineral. मिनरल क्या होते हैं, जियोलॉजिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं इसे? होमोजीनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. Minerals are found in varied forms in nature, ranging from the hardest diamond to the softest tag. Why are they so varied? क्यों अलग होते हैं? क्योंकि सबका अलग अलग फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज होती हैं. सो एवरी मेटल्स विल बी डिफरेंट. सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उसी तरह सारे मिनरल्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं. एवरी मिनरल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन इट. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स. रॉक्स आर कम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. रॉक्स क्या है? कंपोजिशन है किस चीज़ की? मिनरल्स की. मिनरल्स क्या है? नेचुरली अपरिंग सब्सटेंसेस. किसने डिफाइन किया? जियोलॉजिस्ट ने. वो पहला नोट आपने ले रखा है. सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मिनरल. लाइमस्टोन सिंगल मिनरल है, ठीक. बट द मेजॉरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वैरिंग प्रोपोर्शन, है ना. एक रॉक है, उसमें जरूरी नहीं है कि केवल आयरन ही हो, कोई एल्युमिनियम ही हो, कोई कॉपर ही हो, तो उसमें सब कुछ हो सकता है वेरियस प्रोपोर्शन में. ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ओनली अ फ्यू आर अबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स, है ना. हालांकि 2000 के करीब मिनरल्स फाउंड किए गए हैं, पर कुछ ही ऐसे होते हैं जो अबंडेंस में फाउंड किए जाते हैं. सपोज आयरन चाहिए, ठीक ना, सरिया बनानी है घर बनाने के लिए, है ना, रेलवे के लिए डब्बे बनाने, रेलवे के लिए कोचेस बनाने हैं, और वेरियस इंडस्ट्रीज में जहाँ उसके आयरन के यूज़ होंगे तो चाहिए. अबंडेंस में है, हमें दिखता है, हम यूज़ करते हैं, मिलता है. A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the material forms. Thus, in turn, results in a wide range of colors, hardness, crystal forms, luster, and density that a particular mineral possesses. Geologists use these properties to classify the minerals. क्या कह रहा है चैप्टर कह रहा है कि वेरियस कंडीशंस है, ठीक है ना, जिसमें वो मिनरल फॉर्म करेगा. सपोज आयरन ही बन रहा है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट गया, बहुत ही लो कूलिंग की गई उसकी, तो हो सकता है वो थोड़ा सा लचीला, अब बहुत ही जल्दी कूल कर दिया तो तुरंत हार्ड हो गया, तो हो सकता है थोड़ा हार्ड हो, है ना. तो वेरियस थिंग्स ये कह रहे हैं ना, डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन अंडर विच द मटेरियल फॉर्म्स. वो जैसा केमिकल कंपोजिशन से यूज़ करके उसको बना रहे हैं, तो वैसा बन सकता है ना, जैसा हमें नीड है. The various things. Geologists use these properties to classify the minerals. Let's go on to the next stanza. Study of minerals by geographers and geologists. Study of minerals by geographers and geologists.
Geographers study minerals as part of the Earth's crust for a better understanding of landforms. The distribution of minerals resources are and associated economic activities are of interest to geographers. है ना, वाजिब सी बात है, मैं जोग्राफर हूँ, आप जोग्राफर हो, यू आर गोइंग टू बी ए जोग्राफर, देन यू विल हैव द इंटरेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स. आपका इंटरेस्ट वाजिब सी बात इसमें रहेगा. ए जियोलॉजिस्ट हाउएवर इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, their age and physical and chemical composition. However, for general and commercial purposes, minerals can be classified as under. है ना, कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं? मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स. अब हम जा रहे हैं मिनरल्स को क्लासीफाई करने. फ्रॉम हियर आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू नोट डाउन फ्रॉम हियर. मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स. वेयर आर दिस मिनरल्स फाउंड? मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स. है ना, मिनरल्स कहाँ फाउंड होते हैं? ओर्स में. द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विथ अदर एलिमेंट्स. टर्म ओर को कैसे हम डिफाइन करते हैं? द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन है पर्टिकुलर मिनरल्स का उस रॉक में, है ना, मिक्सड विथ अदर एलिमेंट्स. द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसेंट्रेशन. एक पर्टिकुलर सफिशिएंट कंसेंट्रेशन में होना चाहिए टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कॉमर्शियली वाइबल. पता चला बहुत बड़ा पत्थर लेके आए, उसमें 1 किलो लोहा निकला, तो पूरा एनर्जी वेस्ट हो गया. पता चला तुम 1000 रुपये खर्च किए और तुम 10 रुपये की सामान निकाल रहे हो उसमें से. सो इट इज़ नॉट फिजिकली और इकोनॉमिकली वाइबल थिंग. ठीक है ना. तो पर्टिकुलर अबंडेंस में वो चीज़ें होनी चाहिए. सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कॉमर्शियली वाइबल. द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटर्मिन्स द रिलेटिव ईज विथ विच मिनरल्स ओर्स मे बी माइंड. है ना, क्या किया जाएगा कि भाई वाइबिलिटी तो तभी है ना कि जब इसका एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली वाइबल हो. मतलब कि पैसा लगाया जाए तो पैसा कमाया जाए, है ना, फायदा हो. दिस ऑल्सो डिटर्मिन्स द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन. इट इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस इन विच मिनरल्स अकर्स. सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखना कि अगर पर्टिकुलर पत्थर में अबंडेंस में चीज़ें हैं कि नहीं, अबंडेंस में एल्युमिनियम है कि नहीं इस ओर में, या फिर कोई पर्टिकुलर मिनरल है कि नहीं है. मिनरल्स जनरली अकर इन दिस फॉर्म्स. किस फॉर्म में? इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. मिनरल्स मे अकर इन द क्रैक्स, क्रीवाइसेस, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स. है ना, क्रैक्स है, क्रीवाइसेस है, फॉल्ट है, ज्वाइंट है. किस केस में? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में. फिर इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी. इग्नियस रॉक्स जो लावा से बनती है, ठीक ना, निकल के जम जाती है, कूल हो जाती है. मेटामॉर्फिक रॉक्स जो मेटामॉर्फ होती है, मीन्स जो रूपांतरित होती है, रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है इसे. द स्मॉलर ऑकरेंसेस आर कॉल्ड वेन्स एंड लार्जर आर कॉल्ड लोड्स. सपोज ये पत्थर है, सपोज दिस इज अ रॉक, ये पतला सा वेन्स है ना, कह रहा है अभी ये धार दिख रही है कि मान लो ये गोल्ड है ना, गोल्ड है आर्सेनिक. अच्छा, ये पतली से, तो इसे वेन्स कह रहे हैं, पतले पतली धार दिख रही है कि हाँ इसमें हो सकता है कि गोल्ड हो. अब लार्जर आर कॉल्ड लोड्स. सपोज इट इज, है ना, इसको क्या कहेंगे? लोड्स कहेंगे. ओके, लेट्स गो ऑन. इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल इन लिक्विड, मॉल्टेन एंड गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड. है ना, कब ये दिखना सकती है, मतलब कब ये दिख सकती हैं? इन मोस्ट केसेस. कैसे? दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड और मॉल्टेन एंड गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज टूवार्ड्स द अर्थ सरफेस. फॉल्ट से जब मॉल्टेन मटेरियल या फिर कुछ जो भी मिनरल्स है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ों को उसमें ले जाके डिपोजिशन कर देंगे. दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज. है ना, जब नीचे गर्म है ना, पृथ्वी की सतह के अंदर वो मॉल्टेन मटेरियल ऊपर आ रहा है ना, द मॉल्टेन मटेरियल इज कमिंग अप. एज दे आर कमिंग अप, टेम्परेचर हियर इज comparatively, है ना, on the lower part, and here it is comparatively on the higher part. So what we will do, तो यहाँ पे जब ये आएगा तो ये कूल होगा, फिर ये कूल होके सॉलिडिफाई होके डिपोजिशन होगा. ठीक है ना. फिर अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ डिपॉजिट हो गया, इसको तोड़ के लेके गए, इसमें से हमने मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लिया. फिर
क्या कह रहा है, मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लीड एक्स्ट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। ज़्यादातर मेजर मेटालिक मिनरल्स कौन सा, टिन है, कॉपर है, जिंक है, लीड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। ऐसे ही ये जो गया है इसने थोड़ा थोड़ा गर्म करके पिघल के इसमें एंट्री मार ली है, वहाँ से हम तोड़ ताड़ के लेके जाएंगे पत्थर को, माइनिंग करके लेके जाएंगे और उसको और में फर्नाइसेस में जैसे भी स्मेल्टिंग करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट, इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, ये बेड्स और लेयर्स में होंगे। अच्छा, ये ऐसे लेयर्स में, बेड्स ये लेयर्स में है ना। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। अच्छा, इनका डिपोजिशन हुआ है, ठीक, accumulation and concentration in horizontal strata. So we continue on the same page. Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash salt and sodium salt. These are formed as a result of evaporation, especially in arid regions. Arid regions में ये evaporation की वजह से डिपोजिशन नहीं, सपोज या फिर पानी से ही बह के आया, किसी चीज़ से बह के आया, फिर इवापोरेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ, फिर वो प्रेशर बनता गया, डिपोजिशन होता गया। Another mode of formation involves decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents, leaving a residual mass of weathered material containing ores. Bauxite is formed this way. Another mode of formation involves the decomposition of surface rock. Surface rock decompose हुआ and the removal of soluble constituents. वो पानी में घुल के बरसात हुई, चीज़ें बह गई, जो चीज़ रहा बचा रह गया, जो चीज़ चाहिए था, and the removal soluble constituents, leaving a residual mass of weathered material containing ores. और वो जो residual material बचे हुए हैं वो एक तरह से और है ना उस पर्टिकुलर मिनरल के हम पा जाएंगे। बॉक्साइट इज फॉर्म दिस वे। बॉक्साइट का फॉर्मेशन कैसे है, दिस वे। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन, ये पहला मोड ऑफ फॉर्मेशन हमने देखा, सेकेंड एंड थर्ड। लेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स को क्लासीफाई करने के लिए इन्होंने एक टेबल बना रखी है। मिनरल्स, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल्स। अच्छा, मेटेलिक मिनरल्स में कौन से हैं, फेरस में है, नॉन फेरस है, प्रीसियस है। नॉन मेटेलिक में एग्जांपल दे रखा है एनर्जी में, जिससे हम एनर्जी पाते हैं। चलो, फेरस में कौन कौन सा एग्जांपल, आयरन है, आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट एक्स्ट्रा। नॉन फेरस में कौन है, कॉपर है, लिड है, टिन है, बॉक्साइट है, एक्स्ट्रा है। फिर प्रीसियस में कौन सा, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। इसमें माइका, साल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्स्ट्रा। इसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एनर्जी मिनरल्स हो गए। सो लेट अस कंटिन्यू ऑन द सेकंड। अब चौथा है ना, फोर्थ पार्ट, वी केम टू द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमने देखा कि बॉक्साइट कैसे रेसिडुअल रूप में एक मिनरल के रूप में और में बच जाता है। फिर फोर्थ कहता है, सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स in sands of valley floors and the base of hills. These deposits are called placer deposits. टुकड़ों में कोई आया है। and generally contain minerals, और इनके पास क्या होता है, minerals which are not corroded by water, जिसको वाटर करोड नहीं कर पाता है, करोजन नहीं होता है, जिसका जो करोड होके महीनों के बह जाए मिट्टी की तरह, वो चीज़ नहीं है। इसका एक कहीं डिपोजिशन होता रहेगा, किसके रूप में, ये प्लेसर डिपॉजिट्स के रूप में। फिर गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स। मीन्स गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, प्लेटिनम है, इन सारी चीज़ों को हम ऐसे ही जगहों से, ऐसे ही रिसोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ही डिपॉजिट्स से। द ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। ओशन वाटर क्या करता है, वास्ट क्वांटिटीज, उसके पास भी मिनरल्स हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज। बहुत ही विस्तृत रूप है सागर का, तो सागर में चीज़ें अबंडेंस में तो है, पर उसको एक तरह से इकट्ठा करना टफ है। हावेर कॉमन साल्ट
मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर्स, जबकि एक कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है, ये सब लार्जली इन्हीं से ओशन बेड्स से हम डिराइव करते हैं। इसमें दिया ना ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स। पानी आया, डिपोजिशन हुआ, ठीक है ना, फिर इवापोरेशन हुआ, फिर वहाँ से हम साल्ट कलेक्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन होता है, पैकेजिंग होता है, हम तक पहुँचता है। अच्छा, रैट होल माइनिंग। अच्छा, अभी रिसेंट में उत्तराखंड में जो वो टनल में फंस गए थे, तो लास्ट में मशीन्स जब फेल हो गई तो ये रैट होल माइनर ही काम आए, जिन्होंने उन लेबरर्स को बचाया। एंड द सेम थिंग वी आर गोइंग टू रीड हियर। डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड and their extraction is possible only after obtaining due permission from the government? It's a good thing. But in most of the tribal areas of northeast India, minerals are owned by individuals or communities. In Meghalaya, there are large deposits of coal, iron ore, limestone, dolomite, etc. Coal mining in Jowai and Cherrapunji is done by family member in the form of a long narrow tunnel known as rat hole mining. The National Green Tribunal has declared such activities illegal and recommended that these should be stopped forthwith. यानी कि यहाँ के लोग ऐसे माइनिंग करके फिर वह चीज़ों को बेच के अपना काम